जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 साहिबजादों की शहादत की याद में संत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम विज्ञान जम्मू में वीरवार दिवस का किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इस मौके पर रहेंगे मुख्य तौर से उपस्थित। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के ही सांसद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और कहा कि ऐसी हरकतें पार्टी में अनावश्यक आंतरिक कलह पैदा करती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए वीर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान करने पर गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा मांगा और भाजपा का लक्ष्य संविधान बदलना बताया। बी आर अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज अमित शाह के खिलाफ विभिन्न पार्टी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। अखिल जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि अखिल जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति 26/12/2024 को गुरुद्वारा साहिब संत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम डिगियाना जम्मू में 4 साहिबजादों की याद में एक धार्मिक समारोह का आयोजन करने जा रही है, जो शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक चलेगा, जिसे भारत सरकार और पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मुख्य तौर से उपस्थित रहेंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਡਿਗਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਉਹ ਡਿਗਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और हजरतबल से विधायक सलमान अली सागर ने आज पार्टी के ही सांसद आगा रहुल्ला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर गहरी निराशा व्यक्त की। सोमवार को हुआ ये विरोध प्रदर्शन आरक्षण नीति से संबंधित छात्रों की शिकायतों पर केंद्रित था। हालांकि इस कदम से पार्टी के भीतर आंतरिक कलह भड़क गई है, क्योंकि इसे पार्टी के मानदंडों और अनुशासन की अवहेलना के रूप में देखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय नवाय सुबह में आज एक पत्रकारों से बात करते हुए सलमान ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक पहल नहीं थी और कहा कि पार्टी ऐसे मामलों को संबोधित करते समय संरक्षित दृष्टिकोण का पालन करती है। सलमान ने इस तरह की कार्रवाइयों से पार्टी की विश्वसनीयता और एकता को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी पार्टी है और छोटी मोटी घटनाएं या गंदी राजनीति हमें प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां अनावश्यक आंतरिक कलह पैदा जरूर करती हैं और हमें विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में आरक्षण नीति के जरिए ओपन मेरिट कैटेगरी की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। आगा साहब एमपी हैं और उनको लगता है कि एज एमपी वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टिव आता है लीडरशिप से। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट करती है। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ बोलेंगे तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका। एंड मे बी एज एमपी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, जो उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदर को कह रहे हैं, अपने साथी को रकीब कह नहीं, हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं उसको बुरा बनाते हैं, तो वहां तो वही सब थे। तो आप ही के बंधु ने उनको मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीजों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रीएड्रेस करना था इनके ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी जाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फायदा नहीं है उसमें। यहाँ मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी मीर ने आज पत्रकार वार्ता की और कहा कि भाजपा ने पहले कहा था कि अगर उन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी तो वे संविधान बदल देंगे, लेकिन लोगों ने उन्हें 240 सीटों तक ही सीमित कर दिया। वे अपनी सरकार भी नहीं बना पाए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में संसद में हाल ही में दिए गए बयान पर गृह मंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमित शाह को गृह मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक नेशनल इशू को लेकर यहाँ पर एज पर AICC डायरेक्टिव ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हो रहा है। इससे पहले लगातार 22, 23 और आज तीसरा दिन है, तो देश के तमाम हेडक्वार्टर्स पर तो है ही, मगर बाकी जिला हेडक्वार्टर्स पर भी पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं और मेमोरेंडम सबमिट किए जा रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। और आप सब जानते हो कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि जो हमारा आईन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की उनकी नीयत भी है और उनका टारगेट भी है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी जनरल लोकसभा इलेक्शन हुए और तमाम देश ने सुना कि जब बीजेपी के लोगों ने खुलेआम कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें देश का आईन बदलना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो उसके लिए उन्होंने 400 सीटों का टारगेट लेकर चले थे।
और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदलना था, उसमें उनको एलर्जी क्या है? वो एलर्जी ये है कि इस आईन ने हमारे पसमानदा लोगों को, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को कुछ रियायत दिए हैं ताकि वो भी बाकी समाज के साथ आगे बढ़े। वो जो कंसेशंस है, वो जो रिजर्वेशंस है, वो खत्म करने के टारगेट से, वो जब और कोई रास्ता नहीं लगा तो इसलिए टारगेट उन्होंने किया है कि हमें 400 सीटें मिले और 2/3 मेजॉरिटी के साथ में, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है इस देश को, उनके साथ एक टीम ने दिया है, उसको कैसे बदल दें। तो थैंक गॉड देश समझ गया, पब्लिक समझ गया, 140 करोड़ लोग समझ गए उनकी नीयत को। भीम क्रांति सेना ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कहा और कहा कि यदि वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें अपने पद पर विराजमान रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच पे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे नारा देंगे ठोक के। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। मेरा नाम गौरव है। आज अंबेडकर चौक में जिस तरह से सभी जम्मू के जितने भी एससी समाज के और जितने भी बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं अंबेडकर चौक में आए हैं और अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का नाम अंबेडकर 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 जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं एक संवैधानिक तौर से उन्होंने उसी बाबा साहब का जो नाम है उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, जिस पर एससी समाज के बाबा साहब के जितने भी जानने वाले लोग हैं उनकी यह मांग है कि वो माफी मांगे, अन्यथा वो अपने पद से इस्तीफा दें। और वहीं बीएसपी द्वारा आज अंबेडकर चौक पर अध्यक्ष दर्शन रैना की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं और उन्होंने कईयों का उद्धार किया है और ऐसे युग पुरुष के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कहा। अमित शाह, अमित शाह, माफी मांगो, 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 माफी मांगो। अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। आज का धरना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे देश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित शाह ने जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो माफ़ी मांगे और जिसके जो हमारे समाज के जो बाबा साहब के दबे कुचले लोगों की जो बाबा साहब भगवान के बराबर मानते हैं, तो हमारी इसके बाद हम धरना प्रदर्शन के बाद सभी जिलों में और हमारा हम जो इधर बैठे हुए अम्बेडकर चौक में हम अपना में डिव कमीशन को देंगे। जय भीम, जय भारत। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरबख्श गौरव, बहुजन समाज पार्टी जम्मू एंड कश्मीर JKUT से। आज बहुजन समाज पार्टी की पूरी यूनिट, जम्मू कश्मीर की यूनिट यहाँ इकट्ठी हुई है बाबा साहब के चौक पे और इस विषय पे इकट्ठी हुई है कि जो अमित शाह जी ने बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है बाबा साहब को लेकर, जो भगवान को लेकर। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान ही है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका संज्ञान लेते हुए पूरे देश में ये ऐलान किया है कि सभी जिलों में हम जो है अपना बहुजन समाज पार्टी मेमोरेंडम जो है देगी और इसको जो है हम सड़कों तक लेकर आएंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हम जल्द से जल्द अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी, जहाँ इन्होंने अपने जो बयान है वापस नहीं लिए, जहाँ इस्तीफा नहीं दिया, तो हम जो है इसमें आगे और जो बहन जी हमारी दिशा निर्देश करेंगे उस पर हम बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे। हमारी ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे और जो उन्होंने बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर
बाबा साहब को लेकर ये निंदनीय है, ये हमारे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूवमेंट कल्की की ओर से जम्मू बस स्टैंड में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता एडवोकेट सोमेश्वर कोहली ने की। उन्होंने कहा कि संजीव दुबे के खिलाफ बस स्टैंड पुलिस द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं जो फर्जी है। संजीव दुबे एक प्रतिष्ठित समाज सेवी और मूवमेंट कल्की के कोर कमेटी सदस्य हैं। वे हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सबसे आगे बने रहते हैं और सत्य व न्याय की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और बस स्टैंड पुलिस ने 2020 और 21 में एक ड्रग पेडलिंग मामले में उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया है। ये आरोप एक साजिश के तहत लगाए गए जिसमें कई भ्रष्ट तत्व शामिल है। हम यही कहना चाहते हैं कि संजीव कुमार दुबे जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और इनको एक गलत केस में फंसाया दिया गया, और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इनको दर्शाया गया अननोन पर्सन, और जबकि ये थाना है 10 कदम पे, ये एटीएम है जहाँ से ये कहते हैं इन्होंने कोई गलत कार्रवाई की या ड्रग पेडलिंग की। तो बड़ी हैरानगी की बात है 10 कदम पे, और लेकिन चलान भी कोर्ट में गया हुआ है। उसके बारे में, चलान के बारे में हम आगे इस समय कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो चलान और इनकी स्टेटमेंट अलग अलग हैं। जब सवाल पूछे जाने पे ये अलग जवाब देते हैं और चलान इनका कुछ कहता है। तो हमने इसी बात को लेकर एसएसपी साहब के पास भी गुहार लगाई कि एक शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद न की जाए, इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि एक उस टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर 17 रिकवरी 4 महीने में कर गए, वो how come it has been possible, और 17 रिकवरीज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। यही हम लोगों से, आप लोगों से हम लोग विनती कर रहे हैं कि कृपा करके आप लोग भी पुलिस के आला अधिकारियों से ये बात पूछें कि ऐसा कौन से हालात थे कि जो इनको फंसाया गया या बाकी वाले 17 बंदों को फंसाया गया। इसी ये 2019 लास्ट और 2021 शुरू तक, ये इन्हीं दिनों की बात है। एसएचओ साहब चिट्टा रिकवरी स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने गए, क्योंकि उन्होंने 4 महीने में 17 रिकवरी इसी एरिया में बस स्टैंड से दिखा था। कश्मीर में लगातार 0 से नीचे तापमान रहने के कारण शीतलहर से राहत नहीं मिल रही है। इस कड़ाके की सर्दी में मौसम में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने सूखे का दौर जारी रहने पर खतरनाक परिणामों की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर में मौसम की एक स्थिति का मुख्य कारण वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग का पिछला इतिहास रहा है। Amazing beauty, freezing cold here. We never expect this. Actually, this is fantastic moment in my life. This is the first time I visit Srinagar, and this is amazing. Amazing means this is our nice. This is Kashmiri Shishkatu tree. This is frozen lake. See, the first time in 40 years. First time in 40 years, this is frozen. Hello. How are you feeling, sir? Oh, this is amazing, freezing cold. This is my first experience. Amazing. Thank you. ഓരോരുത്തർ മാറി ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ല, അതോ ഫോൺ പോയാ നിൽക്കൂ, അയിമ നിൽക്കും ഫോൺ പോയാ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറിക്കണോ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ എടുത്തരാം കുഞ്ഞോ മച്ചന്മാരെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പേര് വെക്കണോ, നാട്ടിലത്തെ അല്ല. जब
कम पहन यह लगे 6 में असली अच्छा 6 में गो यह पूर जाम अच्छा कम अज कम 1.5 रतस 1 रेत 15 दह लगे तम फुटरानस पे गई कह वे अत तो कुन जाए मजबूरी गो पे गई मकचो वे तिमन दोन बिल्कुल तो यपर पे ग रन वोर मजबूरी पे गन तो पे कोड़ मतलब खचो मज वत ये जीप पचम जीप सह गई 2 मज 62 तम सात जीप पचम बख्शी सबन पकन जीप पे वनकस मानस हे तुत कि ये कुन जाए मतलब किनाल तक फुटबॉल गिंदा। गुज्जर बकरवाल छात्र संघ ने आज सुरनकोट में अपनी इकाई की घोषणा की है। संगठन में जिलाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद अरफान चौहान जबकि सुरनकोट से आशिक खलीफा को तहसील अध्यक्ष चुना गया है। इस छात्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सशक्त बनाना और उनके मुद्दों का समाधान करना है। संघ के निकाय में गुज्जर और बकरवाल छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध समर्पित सदस्य शामिल है। मैंने लगे हम उसको काटनी है और नफरत जो है वो कभी नफरत ना खत्म नहीं हो सकती। आपने बोला कि जो यूनियन है इस बारे पे इस मौजू पे इस बाड़ी पे रोशनी डालने के लिए मोहतरम मोहम्मद रिजवान अली साहब को तकल्लुफ़ गुफ्तार बख्शूंगा कि वे अपने प्यारे अल्फाजों से जितनी बेहतरीन सारा तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं आज से 2 पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में बनाई थी और उसके बाद हमने पूंछ लाया, इसको पूंछ में आके फ्रेम की और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बराबर 1 मंथ के बाद हमने इसको सुनकोट इस बॉडी को सुनकोट में अनाउंस किया है। इस बॉडी का बनाने का एक ही मकसद है कि स्टूडेंट को एम्पावर किया जाए और बॉडी का एक क्लियर एजेंडा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जीबीएसयू ना थी और ना रहेगी और ना है। और जीबीएसयू का एक एजेंडा है कि हमेशा स्टूडेंट की बात की जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट के खिलाफ जाएगी और वो जीबीएसयू उस पर अपनी बात रखेगी, उस पर बोलेगी, कोई भी मसला हो, चाहे वो अपकमिंग मसले आने वाले हैं या चल रहे हैं, वो बोलेगी इंशाल्लाह। चाहे वो स्कॉलरशिप का मसला हो या स्टूडेंट हेल्थ सेक्टर की बात हो, कुछ भी मसला हो, या हॉस्टल्स की बात हो, एग्जाम्स की रिलेटेड बात हो, एज एक्सटेंशन की बात हो, जीबीएसयू उस पर बात रखेगी इंशाल्लाह। पहले आकाश साहब मैं आपका मशकूर हूं अपनी पूरी यूनियन की तरफ से कि आप यहां पे आए और आपने हमें पूरी कवरेज दी। बहरहाल मैं बहुत कम टाइम में कंक्लूड करूंगा इसको और इसका मकसद बताना चाहूंगा आपको। इसका जो मकसद है हमारा इस यूनियन का, इसका नाम हमने जीबीएसयू यूनियन रखा है और इस यूनियन में सिर्फ गुज्जर बकरवाल का ही मौकफ को नहीं उठाया जाएगा, गुज्जर बकरवाल के ही काम को नहीं उठाया जाएगा, बल्कि हर किसी के लिए। ये एक ऐसी यूनियन है जो यूनियन ऑफ मासेस है और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे रुकावटें पेश आती हैं, उनको हल करने के लिए यूनियन काम करेगी। इस यूनियन में जितने भी हमारे इस यूनियन के मेंबर्स बनाए गए हैं वो अपने अपने ओहदों पे काम करेंगे और अपने अच्छे ओहदों से अपने जितना भी हो सका वो बेहतरीन तरीके से अपने ओहदों की पूरी तलफी करेंगे। हमने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ आए। सबसे पहले तो हमने 3-4 साल पहले ये बॉडी जम्मू यूनिवर्सिटी में बनी थी। इस बॉडी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए। स्टूडेंट्स की जो भी दबी हुई आवाज़ है या जो भी अपकमिंग मसले हैं स्टूडेंट्स पे, उनको उन मसलों पे बात की जाए, स्टूडेंट्स के साथ उन मसलों पे बात की जाए। और अभी हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी अनाउंस की थी आज से 1 महीना पहले 23 को। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि सुनकोट में भी हमने आकर ये जीबीएसयू यहाँ सुनकोट में अनाउंस की, जिसके हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ खलीफा साहब मौजूद हैं। तो बाकी सर इसका मेन मोटिव यही है कि ये नॉन पॉलिटिकल एक जो है यूनियन है और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करेगी और इसमें सिर्फ गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट की बात नहीं होगी। कोई भी ऐसा मसला है, इसका सिर्फ नाम गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट यूनियन है जो कि हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है।
हंदवाड़ा में पीएमजीएसवाई डिवीजन ने अपने 24वें स्थापना दिवस को एक उत्सव के साथ मनाया, जिसमें ग्रामीण विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया। पिछले 2 दशकों में डिवीजन ने पूरे क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे स्थानीय निवासियों ने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हंदवाड़ा के निवासियों ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में उनके अथक प्रयासों के लिए पीएमजीएसवाई प्रभाग को बधाई दी। मेरा नाम नज़ीर अहमद गुज्जर है। मैं काजियाबाद में रहता हूं। मैं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हूं और मैं अपनी पूरी पब्लिक की तरफ से, अपने पूरी ट्राइबल एरिया के जितने भी हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी भाई जितने भी इस इलाके में रह रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं आज पीएमजीवाईस को। 24 साल का मैं आपको ये बताऊं, पीएमजीवाईस का जो कार्यकर्ता जो इनने ऑन ग्राउंड, एक होता है डॉक्यूमेंट में घोड़े दौड़ाना, दूसरा होता है ऑन ग्राउंड में काम करना। तो मैं कहता हूं कि जो पीएमजीवाईस ने ऑन ग्राउंड में काम किया है, खासकर जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये रोड आपको कंडक्ट करती है सीधा करालगुंड से मोनाबाल तक। अगर आप यहां से निकलोगे तो आप मोनाबाल, मावर, यहीं से आप हंदवाड़ा पहुंचोगे। तो इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ अगर हम 20 रुपया किराया था चकपुरन से करालगुंड, और हम अगर 40 रुपया भी देते थे क्योंकि हमारी सर्विस यहीं से निकलती थी, तो भी कोई सुमू वाला मानता नहीं था। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ पीएमजीवाईस, जितने भी इनकी शाखें हैं, जितने भी इनके लिंक, जितने भी इनके डेथ बने हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सिलसिले जैसे उन्हें ये काम पिछले 24 साल में किया, इलाके के ट्राइबल एरिया के, वो पीएमजीवाईस को दिया जाए, ताकि पीएमजीवाईस जो अपना काम करती है बड़ी ईमानदारी और तंदुरुस्ती के साथ और अपनी 100% ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं, और उसमें हम लोगों का बेनिफिट है। क्योंकि जितने भी रोड इन्हें बनाई, हमारा जो अस्पताल के साथ कंटेक्ट करता है, जैसे हमारे बच्चे एजुकेशन, आप जानते ही हो एजुकेशन बड़ा टफ है, तो एजुकेशन फैसिलिटियाँ जो है, क्योंकि हमारे लिंक रोड जितने भी रहते थे या कोई टफ रोड रहता था, तो हमारे को उतनी फैसिलिटियाँ नहीं थी। जब से पीएमजीवाईस आई, इनने काम किया, तो हम अपने अस्पताल में भी टाइम से पहुंचते हैं, हमारे को सर्विस जो गाड़ी है वो भी टाइम से मिलती है, हमारे बच्चे एजुकेशन टाइम से लेते हैं और टाइम से पहुंचते हैं। मैं एक बार फिर अपनी पूरी पब्लिक की तरफ से पीएमजीवाईस का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।